Okay, so today we are going to start chapter number 2. In the last chapter, we talked about different sociological perspective. We talked about the sociology, what sociology is. We also talked about different careers in sociology. We discussed why sociology is relevant. We also discussed different important contributors to the field of sociology, including Spencer, Karl Marx, uh, and you know some other contributors, Weber as well. So today we are going to talk about culture. One of the very important area of sociology is culture, right? So chapter 2 is about culture. We are going to see how different cultures, they see the same thing in a different manner, right? In this chapter, we will explain what culture is, how culture provides orientation to life, and what is meant by cultural relativism, right? Um, know the symbolic culture, gesture, language, values, norms, sanctions, folkways, mores, taboos. Uh, we would also discuss subculture. In each culture, there are subcultures. So we are going to talk about cultures within cultures, right? We would compare some of the cultural values, US values, and the Pakistan cultural values. Um, and then we would explain how technology is changing cultures in the world, right? So let us start with the first thing. What is culture? Culture is normally when we talk about culture, what we talk about, generally when we talk about culture, we talk about songs, we talk about cultural shows like, some shows where actors or actresses are involved, right, presenting some sort of clothing, some sort of drama. We call it cultural shows. However, culture has much broader meaning. Culture is a mental program. You learn things around you, right? You learn things from your environment, from your society, and you behave in a certain fashion because of the influence of the environment. That is cultural influence, right? So culture is taken for granted. Culture is taken for granted orientation to life. Taken for granted means we do not think about that. We do not think, deliberate, and then we react. We just believe it is the way I mean, it is the way it is. For example, we never think about that. Why do we respect our parents? We just take it for granted. We know that this is the way, this is the exact way we have to behave. Um, in our culture, the teacher is respected. Uh, it might be different from other cultures, but we never think about that. Why do we respect our teachers? इसी तरह आप देखें कि we love our younger kids, younger sisters and brothers, right? And we never question these things. Why do we love our younger sister or younger brother, right? So culture is something that is taken for granted, right? Culture is within us. Culture is not something that we we are taught in the classes. I mean, that is part of schooling, does help. Your university education does help to reinforce certain sort of culture, but culture is within us. अब अगर मैं किसी की रिस्पेक्ट करता हूँ, किसी चीज से नफरत करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल people in our country, they hate swine, सुअर को
लोग आमतौर पे बड़ी नापसंदीदगी से, यानी इवन लोग नाम भी नहीं लेते, वो कहते हैं 40 दिन जुबान पलीद हो जाती है, ठीक है. सो दिस इज समथिंग विद इन अस, राइट. we may not know the logic of that is within us. So culture is a lens through which we see the world. Culture is a lens. जैसे आप देखें, एक लेंस होता है जिसकी मदद से आप देखते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर कलर ग्लासेस हो तो आपको बाकी सारी चीज़ें कलर नज़र आती हैं, राइट. अगर आप कोई ऐसा मैग्नीफाइंग ग्लास ले लें, लेंस लें, जिससे आपको चीज़ें बड़ी नज़र आएँ, तो आप उसी तरह आपको चीज़ें जो है ना, वो चीज़ों की शेप बहुत बड़ी नज़र आती है. कल्चर एक लेंस है जिसके ज़रिए हम दुनिया को देखते हैं. अगर कोई बंदा फॉर एग्जाम्पल कुत्ते को उठा के गोद में प्यार कर रहा है किसी देहात में, तो हमारे देहातों में आमतौर पे कुत्ते को अच्छा नहीं समझा जाता, निजस या पलीद समझा जाता है, ठीक है. अब उस केस में वो लोग कहेंगे ये गंदा बंदा है. अब वो बंदा गंदा है यानी वी आर लुकिंग एट दैट पर्सन फ्रॉम आवर कल्चरल लेंस, राइट. द प्रॉब्लम इज, since everybody has got people in different cultures have different lens, so when they come across a different culture, they have a cultural shock. अगर आपने सारी ज़िंदगी एक ख़ास कल्चर में, जहाँ पे किसी बड़े बंदे का नाम नहीं बुलाया जाता, ठीक है, और उससे अदब से बोला जाता है, आप कोई गली में आपके कोई बंदा रहता है, इससे आप किसी चचा कह के या अंकल कह के बुलाते हैं. आप किसी दूसरे कल्चर में जाते हैं जहाँ पे ये रिवाज है कि जो इवन आपसे बड़े भी हैं उनको उनके नाम से बुलाया जाए, तो हमें कई दफ़ा कल्चरल शॉक होता है, ठीक है. आपके घर के मेहमान आ जाए और आप उससे पूछते हैं जी चाय पियेंगे, आम तौर पे होता है कि नहीं जी मैं नहीं पीऊँगा. फिर आप कहते हैं नहीं 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 चाय ज़रूर पिएँ, ठीक है. अब आप जब वो कहता है, मेहमान ये कहता है कि मैं चाय नहीं पीऊँगा, वो ज़रूरी नहीं कि उसका मतलब हो कि चाय नहीं पीनी, ठीक है. वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आप इंसिस्ट करें. अब कई कल्चर्स में अगर आपने कहा, आपसे किसी ने पूछा कि वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी एंड यू से नो, दैट मीन्स नो. अब जब बहुत सारे लोग हमारे एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जाते हैं और वो ऐसी प्रैक्टिसेस देखते हैं, तो दे हैव कल्चरल शॉक, राइट. इसी तरह एथनोसेंट्रिसिज्म क्या है कि जब हम किसी दूसरे कल्चर को देखते हैं तो उसे अपने लेंस से देखने की कोशिश करते हैं. हम अपने कल्चर को स्टैंडर्ड मानते हैं. हम अपने कल्चर, जैसे हम ये कहते हैं कि जनाब हम लोग तो बड़े अच्छे हैं, हम बड़ों की इज्जत करते हैं और फलां कल्चर वाले नहीं करते. हम अपने कल्चर के मुताबिक दूसरे के कल्चर को एवेल्यूएट कर, इसे हम कहते हैं एथनोसेंट्रिसिज्म. वी आर सेंट्रिक on our own ethnicity, right, on our own culture, right. So ethnocentrism is very common. It's not just with us. An American, जब अमेरिकन आता है वो पाकिस्तानी को देखो कहते हैं ये बड़े कंजर्वेटिव हैं, ये तो पत्थर के ज़माने में रहते हैं. वो अपने कल्चरल आइडियाज़ के मुताबिक हमें जज करने की कोशिश करते हैं. इसको हम कहते हैं एथनोसेंट्रिसिज्म, राइट. Now this is a wonderful picture that explains the cultural contrast. अगर आप इस तस्वीर को देखें तो आप देख रहे हैं कि we have two very very contrasting sides. एक तरफ दो लेडीज हैं who seems to be Muslim. अब उन्होंने ड्रेस पहना हुआ इस तरह कि the whole body is covered, and there's a lady here who is in a very short dress. अब ये आपको वेस्ट में ऐसे मंजर बड़े बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं. आप इंग्लैंड में, अमेरिका में, जहाँ पे इमिग्रेंट्स काफ़ी हैं, वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि एक तरफ ख़वातीन होंगी जहाँ जो हु आर क्लैड इन वेरी शॉर्ट ड्रेस, और दूसरी तरफ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने निकाब किया हुआ है या हिजाब किया हुआ है, पूरी तरह बॉडी को कवर किया हुआ है. अब इनके लिए जिन्होंने निकाब किया हुआ है, हिजाब किया हुआ है,
इनके लिए ये लड़की जो है, दूसरी लड़की, ये सिंपली शी इज नॉट मॉडेस्ट और हर ड्रेसिंग इज नॉट मॉडेस्ट। तो कहेंगे जी बड़ी बेहयाई की ड्रेसिंग उसने की हुई है, बड़े थोड़े कपड़े पहने हुए हैं, और दिस इज अगेंस्ट द बेसिक वैल्यूज, बेसिक शर्म हया की वैल्यूज के खिलाफ है। और दूसरी तरफ अगर उसका पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वो जब इन्हें देखती हैं तो वो कहती है कि इन्होंने सारा जिस्म ढांपा हुआ है और ये बड़े कंजर्वेटिव लोग हैं, ये मॉडर्निज्म के खिलाफ हैं, ये तरक्की के खिलाफ हैं, ये शायद किसी इसके घर वालों ने इन्हें फोर्स किया हुआ है और ताकि पूरे कपड़े पहने, और ये इन्हें दबाया हुआ है, इसलिए ये लोग जो है ना इनकी हालत बड़ी काबिल रहम है, क्योंकि इनको अपनी मर्जी से कोई काम करने की इजाज़त नहीं। अब ये दोनों कंट्रास्टिंग व्यूज़ हैं। एक, हर बंदा अपने लेंथ से दूसरे को देखने की कोशिश कर रहा है। जब ये हिजाब में जो लेडीज़ हैं, व्हेन दे लुक एट द अदर गर्ल, for them it might be simply not acceptable। अब और उसके लिए ये चीज़ अनएक्सेप्टेबल है कि एक औरत ने सारा का सारा अपना जिस्म कवर किया हो। अब ये देखें, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हम लेसन ड्रॉ कर रहे हैं वो ये है कि हम उस वक्त तक दूसरे कल्चर को नहीं समझ सकते जब तक हम उस कल्चर के लेंस से चीज़ों को ना देखें। ठीक है? अनदर पिक्चर हियर, वेस्ट की कोई फोटो है जिसमें इमिग्रेंट्स के बच्चे हैं, चाइनीज़, आपको कुछ फार ईस्ट कंट्री से कुछ बच्चे नज़र आ रहे हैं। चिल्ड्रन मेक फास्ट एडजस्टमेंट टू न्यू कल्चर, ऑल्दो as with the Hmong children in elementary school in St. Minnesota, they are caught between the old and the new। अब बच्चे यहाँ पे स्कूलों में जाते हैं इमिग्रेंट्स के, वहाँ पे उन्हें डायलमा होता है, they are in trouble। घर में उन्हें कुछ और वैल्यू सिखाई जाती हैं, स्कूल में और वैल्यू सिखाई जाती हैं। घर में उन्हें बताया जाता है कि टीचर की इज्जत करनी है, उसका नाम नहीं बताना। वहाँ पे स्कूल में बताया जाता है कि टीचर को उसके नाम से बुलाना है। ठीक है? अब ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन नॉर्मली चिल्ड्रन दे आर वेरी क्विक लर्नर। वो बड़ी जल्दी ये रियलाइज कर लेते हैं कि ये दो डिफरेंट कल्चर हैं और किस कल्चर में आपने कैसे बात करनी। अब हम ये बात तो ये बात हम समझ गए हैं कि कल्चरल लेंस हर बंदे का अपना, एक कल्चर में रहने वालों के लिए कल्चरल लेंस वाले लोग जो दुनिया को देखते हैं वो अपने कल्चरल लेंस से देखते हैं। ठीक है? जब अपने कल्चरल लेंस से देखते हैं तो उससे आप उस कल्चर के बारे में सही अंदाजे नहीं लगा सकते, राइट? You may misinterpret the other culture, and that is why it is very important that we practice cultural relativism। You can see here, on this slide, the heading is practicing cultural relativism। Cultural relativism means that we can understand the other culture if we try to understand other culture on their terms, not on our terms, right? हम ये देखें कि उस कल्चर में इस चीज़ का क्या मतलब है। जैसे मैं आपको फोटो में बता रहा था पिछली तस्वीर में कि एक कल्चर में अगर कोई if any female covers her body, that is sign of modesty, that is a good sign। अगर हम उसे अपने कल्चर, एक वेस्ट में बैठा बंदा उसे अपने कल्चर के मुताबिक देखेगा तो वो मिसलीडिंग कंक्लूजन निकालेगा। ठीक है? इसलिए ज़रूरी है कि आप जिस कल्चर को देख रहे हैं उसी कल्चर की टर्म्स पे देखें, ना कि अपनी टर्म्स पे उस कल्चर को देखने की कोशिश करें। ठीक है? Now, so cultural relativism is something that can help us to understand other cultures in a more effective way। The
problem is it's not easy to practice cultural relativism. ये कहने में बड़ा आसान है कि कल्चरल रिलेटिविज्म प्रैक्टिस करें, आप दूसरे कल्चर को दूसरे कल्चर के मुताबिक देखें, लेकिन एट टाइम्स इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि हम बचपन से एक खास तरह से हमारे माइंड स्ट्रेन हुआ है, हमने एक खास तरह से सोचना शुरू किया, खास तरह से दुनिया को देखा। अब जब हम उसको यानी कोशिशें करते हैं कि दूसरे के कल्चर के मुताबिक उन्हें देखें, तो कई दफ़ा हम कोशिश के बावजूद ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए फॉर एग्जांपल मैं आपको ये एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। मैनी अमेरिकन परसीव बुल फाइटिंग एज क्रूअल एक्टिविटी। अब हमारा तो छोड़े, हमारा तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पाकिस्तान एक एशियन कंट्रीज़ इसको डेफिनेटली उनके लिए बड़ा इलॉजिकल चीज़ है। आपको पता है बुल फाइटिंग बड़ी पॉपुलर है स्पेन में, ठीक है ना, आपने शायद सुना भी हुआ, और आपने ये भी देखा कई दफ़ा बंदे इसमें मर जाते हैं। वो ये बुल के साथ फाइट करते हुए कई दफ़ा बुल के काबू आ जाता है तो मार देते हैं उस बंदों को, ठीक है, इंजरी सीरियस इंजरीज होती है। अब इसी तरह हमारा तो दूर की अमेरिकन जो एक वेस्टर्न कंट्री है, वो भी ये समझते हैं कि बुल फाइटिंग इज अ क्रूअल एक्टिविटी, राइट, दैट शुड बी इलीगल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। However, people in the Spain, they have a very different views about this. To most Spaniards, bullfighting is a sport. जैसे हमारे लिए क्रिकेट है, वो कहते हैं बुल फाइटिंग स्पोर्ट है, इसमें कोई जुल्म की कोई बात नहीं, ठीक है। और किस लिए, बल्कि ये समझा जाता है ये स्पोर्ट में जो लड़ता है वो असल में एक बहादुर इंसान है। बुल इन अ यूनिफाइंग इमेज ऑफ पावर, करेज एंड ग्लोरी। इज्जत आपने कमानी है, आप में हौसला है, आप में ताकत है, तो आप बुल फाइटर हो। अब आप देखें कि बड़े डिफरेंट कंट्रास्टिंग व्यूज हैं, जो हम लास्ट स्लाइड में भी ये बात कन्फ्रंटिंग कंट्रास्टिंग व्यूज ऑफ रियलिटी। इस चीज को हमें समझना है कि रियलिटी जो मेरे लिए रियलिटी है, वो दूसरे कल्चर में रहने वाले लोगों के लिए जरूरी नहीं कि रियलिटी हो, क्योंकि हम ये कहते हैं जनाब ये बात बिल्कुल हकीकत है, वो बंदा जालिम है। अब वो हकीकत मेरे लिए फ़र्क होगी और दूसरे कल्चर में रहने वाले किसी बंदे के लिए हो सकता है वो हकीकत बिल्कुल फ़र्क हो, ठीक है। सो बुल फाइटिंग, जैसे अभी मैंने बात आपसे की कि स्पेन में रहने वाले फॉर स्पेनिश पीपल इट मे बी a sign of power, glory and courage. For a person living in Pakistan or in America, this may be a very cruel activity, this may be insane, inhuman, right? वो पागलपन है कि लोग जो है ना ये काम कर रहे हैं। अब कल्चरल रिलेटिविज्म क्या है? कल्चरल रिलेटिविज्म require that we suspend our own perspective, we ignore our own perspective. मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि ये इलीगल होनी चाहिए, मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि ये जुल्म है, जानवर के साथ भी इंसान के साथ। अगर हम उस कल्चर को समझना चाहते हैं तो कल्चरल रिलेटिविज्म ये है कि आप ये देखें कि उस कल्चर को उनकी टर्म्स पे देखें, उनके पर्सपेक्टिव से देखें, राइट। और आखिरी लाइन ये बहुत अच्छी लिखी है, समथिंग ईजियर डिस्क्राइब देन अटेन, यानी कहना बहुत आसान है कि उनके टर्म्स पे देखें। आप कहें जी स्पोर्ट है, वो समझते हैं कि इमेज है पावर का, तो इसे हमें इमेज जो है ना एक पावर इमेज के तौर पे, एक करेज के इमेज के तौर पे, ग्लोरी के इमेज के तौर पे करना कबूल कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं, ठीक है। बहुत सारे लोग जो डिफरेंट कल्चर्स में रहते हैं, ट्रैवल करते हैं, वो बहुत हद तक उनमें कल्चरल रिलेटिविज्म ज़्यादा होता है। लेकिन इवन अगर एक अमेरिकन या एक पाकिस्तानी स्पेन में भी रहता है तो बहुत अरसे भी रहने के बाद वो शायद वो इतना तो बर्दाश्त कर ले कि चलें ये करते हैं स्पेनिश तो करने दो, लेकिन अगर उसे कहा जाए कि यू शुड लव दिस गेम, probably he or she cannot, right? So cultural relativism is easy to describe, but it is very difficult to implement and practice. It is not easy to practice at all.
ये आपको मैं एक और एग्जांपल, ये ज़रा देखें, ये क्या है, वॉर्म्स, व्हाट सम कंसिडर फूड इवन डेलिकेसीज, बड़ा अच्छा फूड है, स्पेशलिटीज जो होती हैं, कैन टर्न द स्टमक ऑफ अदर्स। अब कई लोगों को ये तस्वीर देख के बड़ा दिल खराब होता है कि यार ये क्या चीज़ें हैं, ये कीड़े खा रहे हैं, ठीक है। These roasted grub worms were for sale in Bangkok, Thailand. अब मैं आपको बड़ा मज़ेदार वाक़या सुनाता हूँ। मैं एक दफ़ा थाईलैंड गया और वहाँ पे रोड साइड पे जैसे रेडियो पे ना बारबेक्यू वगैरह वो बना रहे थे, तो मेरे दिल में आया कि ज़रा देखूँ क्या चीज़ें बना रहे हैं। अब मैं जब आगे होके देखा तो वहाँ पे लिटरली फ्राइड कॉकरोचेस, लाल बे कॉकरोचेस पड़े हुए हैं वहाँ पे, उन्हें फ्राई करके, और लेजर्ड्स हैं, छिपकलियाँ, वो रोस्ट कर रहे हैं उधर, बारबेक्यू कर रहे हैं, और वो जनाब लोग खा रहे हैं उधर। और आई मीन इट वाज सो डिस्गस्टिंग फॉर मी। आई मीन लिटरली वो मैं उस गली से, उस स्ट्रीट से गुजरना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे ये सोच के घिन आती थी कि यार ये क्या चीज़ें खा रहे हैं। दे ईट फ्रॉग्स, दे ईट स्नेक, लिट, बल्कि वो हमारा एक इधर ना, एक मेरा एक दोस्त था, वो थाई था, तो मैंने एक दफ़ा से पूछा, मैंने कहा चैट डू यू ईट पोक एज वेल, तो उसने बड़ा मज़ेदार जवाब, उसने कहा वी ईट एवरीथिंग, राइट। सो आई मीन यू कैन सी इन दिस पिक्चर, बल्कि स्नेक सूप जो है वो बड़ा उधर डेलिकेसी समझा जाता है। अच्छा, उसके अलावा कई वो बड़े किस्म के वो होते हैं, बड़ी छिपलियाँ कह लें, किले से वो बड़े ज़राना, उनको बाकायदा उधर ही आपके सामने उनका सर काटते हैं और वो कहते हैं आपको फ्रेश जूस, फ्रेश सूप इसका बना के देते हैं। अब ये वहाँ पे स्पेशलिटीज़ है। इमेजिन आप पाकिस्तान में किसी को ये, सिर्फ ये आप सुन लें कि उसने वो फलां बंदे ने कीड़े खाए हैं, बल्कि वो आपको पता है हमारे चावल कभी खा रहे हो, कोई छोटी मोटी कोई सुंडी, कोई वो कोई निकल आए, कोई छोटा मोटा कीड़ा उसमें से निकल आए, तो वो चावल खाने को दिल नहीं करता। अब एक बंदों के लिए बड़ी ये अच्छी मज़ेदार चीज़ है, मज़ेदार फूड है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसको बिल्कुल इस पे दिल खराब होता है जिनका। इसलिए ये जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि कहना ये बहुत आसान है कि कल्चरल, वी शुड प्रैक्टिस कल्चरल रिलेटिविज्म, वी शुड see other culture on their terms. It is actually very difficult to practice, right? Now look at this is a beautiful picture, and the heading is standards of beauty. अब आप तस्वीर देख रहे हैं, अब पाकिस्तान में कौन कौन बंदा इसे खूबसूरत कहेगा? जनरली लोग नहीं कहेंगे। अब शायद इसको जो who seems to be a European, people might consider very beautiful. Why? Because color is, she has white complexion. ये भी, अब ये जिस मुल्क से, अब ये भी खूबसूरत है, ठीक है ना। अब खूबसूरती के आप देखें कि स्टैंडर्ड सारी दुनिया में फ़र्क है। जिसको हम किसी तौर पे खूबसूरत मानने को तैयार नहीं है, वो कई मुल्कों में बड़ा खूबसूरत है। ठीक है ना। अब ये जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब ये केनियन है, केनिया में ये इट्स सिंबल ऑफ ब्यूटी। अब यहाँ पे देखें, दिस ड्रेसिंग एंड दिस गेटअप इज कंसिडर्ड टू बी वेरी ब्यूटीफुल। ये आपने देखा होगा शायद अक्सर अफ्रीकन को वो बालों को ट्विस्ट करते हैं और ट्विस्ट करके वो इस तरह के वो बनाते हैं, बाल अपने बनाते हैं, अब स्पेशल काइंड ऑफ हेयर ड्रेसिंग। अब ये दैट इज कंसिडर्ड रियली ब्यूटीफुल। और कई लोगों के जिनके बाल नेचुरली ऐसे नहीं हो सकते, वो कई ना आर्टिफिशियल विग्स लेते हैं ताकि इस तरह के बाल नजर आए, ठीक है। अब दिस इज स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी फॉर देम hairs like us are not very beautiful, not very impressive. अब आप इस तस्वीर को देखें और आपको, और बल्कि मैं आपको एक और बड़ा मजे की बात बताता हूँ कि एक मैंने आर्टिकल पढ़ा बीबीसी
से उर्दू में एक दफ़ा आया था कि अफ्रीका एक मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे ये समझा जाता है कि मोटा जितना बंदा होगा, स्पेशली लड़की जितनी मोटी होगी उतनी खूबसूरत होगी, और इसलिए क्या करते हैं वहाँ पे खूबसूरत होगी और वो उतना ज़्यादा उससे उसकी ये चांसेस ज़्यादा है कि उसकी शादी किसी अच्छे घर में हो। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि अब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो क्या करते हैं कि अमीर घरों के जो बच्चियाँ होती हैं वो उन्हें देहातों में भेजते हैं जहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग स्कूल्स खुले हुए हैं या स्कूल्स हैं, तो वहाँ पे उन बच्चियों को 13-14 साल की बच्ची को उधर भेजते हैं। वहाँ पे उन्हें काफ़ी ज़्यादा खिलाया जाता है, और बल्कि वो जो ट्रेनर या जो द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रूमिंग दैम, वो क्या करती है, औरतें होती हैं वो स्टिक पास रखती हैं, अगर वो बच्ची नहीं खाती है तो उसकी बाकायदा स्टिक से पिटाई करती हैं, और इस हद तक कि उन्हें फोर्स किया जाता है ईट मोर, and then within 3 months on average girls gain 12 to 15 kilograms of weight, और 12-15 किलो वेट गेन करके वापस उन्हें शहर भेज दिया जाता है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये मोटी ना हुई तो ये समझा जाएगा ये किसी गरीब घर की हैं, इन्हें खाना पीना उस तरह से इनके पास नहीं है। अब आप देखिए कि अब हमारे यहाँ नॉर्मली स्लिम एंड स्मार्ट कहा जाता है कि इफ़ यू आर स्लिम यू आर कंसिडर्ड स्मार्ट पर्सन। दुनिया के कई मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे आप अगर मोटे हैं, इफ़ यू आर ओबीस इवन वेरी वेरी फैट, देन यू विल बी कंसिडर्ड ब्यूटीफुल, राइट। अब आप जरा आगे चलते हैं। अब यहाँ तक हमने ये बात हमें पता चल जानी चाहिए कि ब्यूटी, what is considered beautiful here may not be beautiful in other countries. अब हम अगर सफ़ेद रंग पसंद करते हैं तो शायद अब उसकी बड़ी हिस्टोरिकल रीजंस हों। हो सकता है कि यहाँ पे क्योंकि जो रूलर्स रहे हैं अंग्रेज़ थे, उससे पहले सेंट्रल एशियन स्टेट से ज़्यादातर अफ़गानिस्तान से, सेंट्रल एशियन स्टेट से जो रूलर्स आए उनके रंग ज़रा फेयर थे, और जो लोकल इंडियंस थे उनके रंग इतने फेयर नहीं थे। तो क्योंकि उनके जो रूलर्स थे, हुक्मरान थे, they have fair complexion, so fair color is considered, white color is considered beautiful. आपको पता है यहाँ पे बेशुमार कंपनीज क्रीमें बना रही हैं, और वो क्या है, वाइटनिंग क्रीम्स लाइक फेयर एंड लवली, ठीक है ना। तो आपको पता है अच्छे खासे जिनके फेयर कम्प्लेक्शन होते हैं वो भी वो फेयर एंड लवली लगाते हैं। मैं एक दिन एक दुकानदार से बात कर रहा एक हमारी सोसाइटी में, तो वो मैंने से कहा यार ये बिकती है क्रीम्स? उसने कहा इतनी बिकती हैं, बल्कि जो बड़े जिनके फेयर कलर हैं वो भी ये लेके जाते हैं, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स है कि हमारा रंग अगर काला हुआ तो हमें खूबसूरत नहीं समझा जाएगा उसके मुकाबले में। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो डार्क कलर है हमारी सोसाइटी में, इट इज़ साइन ऑफ लेबर। इंडिया में, चाइना में, पाकिस्तान में आप जितना बाहर जाते हैं उतना ज़्यादा आप धूप में जाते हैं, आपका रंग काला होता है, ठीक है। अब ये समझाता है कि ये गरीब आदमी है, बाहर काम शाम करने वाला है, इससे इसका रंग डार्क है, और जो अंदर घरों में बैठे हुए हैं रिलेटिवली नहीं जाते हैं, उनके फेयर कलर है। यहाँ पे एक ये भी इशू है अनकॉन्शियसली, शायद आपको इस बात का वैसे ना पता हो कि आपसे कोई पूछे कि आपके कि नहीं ये साइन ऑफ लेबर है, लेकिन अनकॉन्शियसली वी कंसिडर इट, people who are of fairer color, we treat them as superior, as more beautiful, and they are considered to be uh,
someone who are not engaged in the physical labor outside in the sunshine, right? The next learning objective is components of symbolic culture. हमने learning objective में शुरू में बात की थी. Second component is symbolic culture. Symbolic culture includes gestures, language, language and perceptions, and then we would also talk about Sapir-Whorf hypothesis. Then we would talk about values, norms, and sanctions, folkways, mores, and taboos. Let's start with gestures, right? Now, gestures are body movements. ठीक है ना? Body movements to communicate something with somebody. Body movements, जैसे आप ये कहते हैं कि आपने कोई चीज देखी है और आप कहते हैं ओ नो, राइट? इवन आप बोलते भी नहीं हैं, आप बुरा सा मुंह बना लेते हैं. अब इसका मतलब है कि आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये कन्वे किया है, यू डू नॉट लाइक इट. हम ये कहते हैं वो फलां इतनी बड़ी चीज थी, है? हाथों के इशारे से हाथ फैलाते हैं. अभी जो हम इशारे करते हैं हाथों से कि बहुत बड़ी है, दैट इज बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, राइट? इसी तरह आप स्माइल करते हैं, हंसते हैं. हंसने का मतलब जरूरी नहीं कि खुश हो. हंसने का मतलब ये भी हो सकता है आप किसी पे जुगत लगा रहे हैं, आप किसी को टॉन्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो टॉन्टिंग स्माइल्स भी होती हैं. अब ये इन चीजों को राइट. अब प्रॉब्लम ये है जेस्चर्स के साथ कि जेस्चर्स आर नॉट यूनिवर्सल, दे आर नॉट सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड. One gesture that may mean one thing in one culture may have very different meaning in another culture. ठीक है, ये मैं आपको एग्जांपल एक देता हूँ. अब इस एग्जांपल में जेस्चर्स टू इंडिकेट हाइट, तो कितना लंबा है. जब आप इस तरह एक हाथ के इशारे से ये कर रहे हैं, जो आप, इसका मतलब ये मैक्सिको में, इसका मतलब है यू आर टॉकिंग अबाउट हाइट ऑफ अ पर्सन, राइट? हाइट ऑफ अ पर्सन. अगर आप इस तरह हाथ के इशारे से बता रहे हैं कि कितनी हाइट है, तो इसका मतलब है यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्लांट. अगर आपने इंसान के हाइट की बात करनी है तो आपने इस तरह एक उंगली से करनी है. अगर आप ये, अब आपको पता है पाकिस्तान में अगर हाइट है तो हम इस तरह ये सिंबल यूज करते हैं बंदों के लिए, हम कहते हैं इतना बड़ा हो गया है. आमतौर पे अपने बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए, लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इसका मतलब मैक्सिको में है. अगर आप मैक्सिको में ये करें तो इसका मतलब ये है कि यू आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स, राइट, नॉट ह्यूमन बीइंग्स. So, going back, so gestures meanings differ among different cultures. There are no universal gestures. अगर आपने कभी इंडियन मूवीज देखी हो और उन पे तवज्जो की हो तो आपको शायद एहसास होगा, कभी आप देखेंगे गौर से, अगर आप देखें, वो कहते हैं कि आपके ना देखें ना वो बंदा बड़ा अच्छा है, तो वो ऐसे 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 करते हैं, सर हिलाते हैं. कभी आप देखिए, इसका मतलब नो नहीं है. हमारे नजदीक सर हिलाने का मतलब है नो, राइट? फॉर देम इट मींस यस. मेरे साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ. एक दफा मैं किसी कोर्स पे था श्रीलंका में, तो वहां पे एक इंडियन था मेरे साथ. अब मैं उसे कोई बात बता रहा हूँ और वो ऐसे ऐसे सर हिला रहा है, तो मुझे बड़ा गुस्सा है. मैं कि यार ये बड़ी बदतमीजी है कि मेरे मुंह पे ही जो है ना इनकार करता जा रहा है. बाद में मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा इस तरह मुंह हिलाने का मतलब ये है यस, ही एग्रीज विद यू. आप कभी इंडियन मूवीज में देखिएगा, आपको अक्सर ये चीज नजर आएगी, राइट? सो जेस्चर्स मीनिंग्स डिफर फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर कल्चर. ठीक हो गया? और क्योंकि मीनिंग्स डिफर करते हैं, दैट्स व्हाई इट कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग्स. It can lead to misunderstandings. एक जर्मनी में अगर आप किसी को रोजेस प्रेजेंट करें, हैं? रोजेस गुलाब के फूल जो होते हैं, a bunch of 12 roses. If you present bunch of 12 roses, that means I love you and I want to marry you, right? That is kind of
वेडिंग मैरिज प्रपोजल, राइट। अब एक फॉरेन मैनेजर गया जर्मनी में और उसने सोचा कि क्लाइंट के साथ मिलने जा रहा हूँ तो अच्छा लगेगा, कुछ फूल ले जाऊँ। अब वहाँ पे स्टोर पे फूल पड़े हुए थे। ही डिडंट रियलाइज ही पिक 12 बंच ऑफ 12 रोजेस। उसे पता नहीं था इस चीज़ का, उसने वो ले लिया। अब इत्तेफाक से जिसके पास मिलने गया वो एक फीमेल थी और उसने जनाब हेलो किया और उसे 12 फूलों का सेट पकड़ा दिया। एंड शी वॉज शॉक्ड that it is the first meeting, and in the very first meeting he is proposing me as if he wants to marry her. That's very interesting, isn't it? So अब इससे आप देखें कि आप जब आप उन मीनिंग्स का पता नहीं होता आपको जेस्चर्स का, it may lead to misunderstanding, and that's why we can say that there are no universal gestures. I mean, there are some sort of universality. For example, गुस्सा एक यूनिवर्सल फीलिंग है, लेकिन गुस्से का इजहार कैसे करना है, ये एक कल्चर से दूसरे कल्चर के दरमियान फर्क होगा। कई जगह पे लोग चीख के करेंगे, कई जगह पे लोग सिंपली मुंह बना लेंगे, ठीक है, कई जगह पे लोग अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने देंगे, ठीक है। इसलिए कल्चर जो है, there are no universal gestures, right? I just discussed this example with you. Let's move on. Here is an Indian photo, और ये बड़ी मजेदार बात है लिखी है। उन्होंने कहा कि जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो तो शायद एक जैसा रोते हैं, लेकिन 2-3 साल का बच्चा होता है तो बच्चे के रोने का स्टाइल भी एक कल्चर से दूसरे कल्चर के दरमियान फर्क। बच्चे जिस तरह अपने कल्चर के मुताबिक रोना भी उस तरह सीखते हैं, राइट। ये आखिरी लाइन आप देखिए। इन अ फ्यू years टाइम however the child will demonstrate a variety of gestures highly specific to Hindu culture. So, second one, in the symbolic culture, the second important thing is language. What is language? Language allows cumulative human experience. Cumulative human experience. What does that mean? देखिए, ये सदियों से क्यूमुलेटिव मीन सदियों से इकट्ठा हुआ ह्यूमन एक्सपीरियंस हम कैसे प्रिजर्व करते हैं? थ्रू लैंग्वेज। जब हम कहते हैं कि वो बंदा बड़ा बदतमीज़ है, तो ये कई सदियों से हमने एक्सपीरियंसेस ये हैं कि जनाब जो बंदा इस तरह की हरकत करे उसको हम कहेंगे बदतमीज़। अब वो कहाँ पे प्रिजर्व हो रहा है? बड़ों के साथ गुस्से में बोले, बच्चों को मार रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ें, ये सारे एक्शंस को जो हमने नाम दिया है वो कैसे हमें पता चला? वो थ्रू लैंग्वेज हमने प्रिजर्व की। सो लैंग्वेज अलाउज क्यूमुलेटिव ह्यूमन एक्सपीरियंस। एक नस्ल का नहीं, कई नस्लों का, कई 100 साल की जो नॉलेज है वो क्यूमुलेटिव ह्यूमन एक्सपीरियंस है, दैट इज प्रिजर्व, दैट इज सेव्ड इन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, राइट। इसी तरह प्रोवाइड सोशल एंड शेयर्ड पास्ट and provide social and shared future. Shared past and shared future. What does that mean? जब हम ये कहते हैं कि शेयर्ड पास्ट, देखिए लैंग्वेज के जरिए हम मेमोरीज अपनी एक्सप्रेस करते हैं। जो हम वैसे चीज़ें याद रहती हैं वो तो बहुत थोड़ी होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम अल्टीमेटली उन लफ्ज़ों में ले आते हैं अपनी चीज़ों को, ठीक है, अपने एक्सपीरियंसेस को, और लफ्ज़ों के ज़रिए हम याद रखते हैं। अगर आपको कोई केक एग्जैक्टली वो तस्वीर प्रोड्यूस कर दें जो आपने 15 साल पहले एक पहाड़ी इलाके में देखी, यानी बहुत खूबसूरत सीनरी देखी थी, वो तो हम नहीं कर सकते। हम ये क्या करते हैं, अगर आप ये सोचिए कि अगर लैंग्वेज ना होती तो हमें मेमोराइज करना चीज़ें कितना मुश्किल होती। इसलिए मेमोरीज जो है वो प्रिजर्व होती है किस चीज से? लैंग्वेज। लैंग्वेज प्रोवाइड्स शेयर्ड पास्ट, राइट। हम डिफरेंट इवेंट्स को वर्ड्स अटैच करते हैं। मसलन ईद, हमने एक खास तरह से खुशी मनाते हैं रमज़ान के बाद, हमने उसे नाम दिया ईद, ठीक है। इसी तरह हम ये कह देते हैं कि जनाब वो फलां जगह पे फलां शो हुआ था, बड़ा खूबसूरत है। लैंग्वेज के ज़रिए हम उन चीज़ों को प्रिजर्व करते हैं।
राइट। सो इसलिए जब हम पास्ट इवेंट्स डिस्कस करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, वी डेवलप शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट दोज इवेंट्स मीन। जैसे अगर मैं कहूँ कि जनाब वो जो इवेंट हुआ है दैट वाज वेरी वेरी फनी, अब फनी के लफ्ज़ से मुझे समझ आ जाएगी कि उधर क्या हुआ है, मुझे जरूरी नहीं कि उसकी वीडियो दिखाई जाए कि लोग हंस रहे थे या नहीं हंस रहे थे। सो लैंग्वेज that provides language provides a social and shared past। इसी तरह जो दूसरी चीज हमने कही कि language provides a share social and shared future, right। क्योंकि लैंग्वेज जो है that enables us to agree on time, dates and places, right। so that means it allows us to plan activities with one another। जैसे आपने अगर किसी से प्लान करना हो कि पार्टी करनी है और ये लफ्ज़ ना हो पार्टी का, तो कैसे कन्वे करेंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज जो है ये शेयर्ड फ्यूचर भी, जो हम थॉट्स शेयर करते हैं दे आर शेयर्ड थ्रू लैंग्वेज, राइट। सिमिलरली हम ये जो बात करें कि लैंग्वेज अलाउज शेयर्ड पर्सपेक्टिव, our ability to speak and then provide a social past and future। इससे क्या होता है, obviously it's very important for our living, for our survival, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ वर्ड्स जो हैं वो हमारे एक्सपीरियंसेस वर्ड्स के ज़रिए फ़िल्टर होके हमारे तक आते हैं। जब हम कहते हैं कि वो फ़लाँ बंदा बड़ा बेहया है, ठीक है, तो अब एक ख़ास लफ्ज़ में हमने एक ख़ास कैफियत को हमने लफ्ज़ों में कैद किया, ठीक है। हम किसी इवेंट के बारे में बात करते हैं, इवेंट के बारे में बात कहते हैं कि जनाब वहाँ पे तो टोटल मेस था, टोटल बोरिंग था। अब बोरिंग जो है लफ्ज़ ये कंटेन करता है, हमारा पर्सपेक्टिव शो करता है, राइट। सो लैंग्वेज अलाउज शेयर्ड पास्ट, इट अलाउज शेयर्ड फ्यूचर, इट अलाउज द शेयर्ड। और मजे की बात शेयर्ड हम इसलिए कह रहे हैं कि दूसरा बंदा भी, जब हम कहते हैं उधर बड़ा बोरिंग था तो दूसरा बंदा समझ जाता है कि वहाँ पे क्या हुआ, ठीक है। शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग है, शेयर्ड पास्ट, शेयर्ड फ्यूचर, राइट। इसी तरह इट अलाउज कॉम्प्लेक्स शेयर्ड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। So language and perception, the Sapir-Whorf hypothesis. Language has embedded within it ways of looking at the world. Sapir-Whorf hypothesis क्या कहता है कि कॉमन सेंस क्या कहती है, कॉमन सेंस ये कहती है कि सॉरी जो Sapir-Whorf hypothesis है, it suggests us something that is opposite to common sense, right। ये ये कुछ सोशियोलॉजिस्ट थे, एडवर्ड सैपर और बेंजामिन वुल्फ, राइट। इन्होंने ये प्रपोज किया, एक थ्योरी पेश की कि जो हम डिफरेंट चीज़ें, पास्ट इवेंट्स एनालाइज करते हैं, प्रेजेंट इवेंट एनालाइज करते हैं, फ्यूचर इवेंट्स एनालाइज करते हैं, इस तरह फिर हम जैसे डिफरेंट कल्चर्स में होते हैं डिफरेंटली बिहेव करते हैं, स्पेनिश, फ्रेंच, अरब, दे बिहेव डिफरेंट, राइट। ओके, अब अगर आप डिफरेंट लोगों को ऑब्जर्व करें, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में ऑब्जर्व करें, इन्होंने ये कहा कुछ ऑब्जर्वेशंस, राइट, और इन्होंने कहा कि दे words might be more than labels that people attach to things। और ये जो या हम बात करें, लैंग्वेज हैज एम्बेडेड विद इन इट्स वेज ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड। इन अदर वर्ड्स, लैंग्वेज नॉट ओनली एक्सप्रेस आवर
thoughts and perception also shape the way we think and perceive. बात आप समझ रहे हैं कि आम तौर पे हम ये क्या कहते हैं कि हम लैंग्वेज के जरिए अपना इजहार करते हैं. वो कहते हैं नहीं, सिर्फ इजहार नहीं करते, इट रिवर्स इज कॉमन सेंस. आम कॉमन सेंस में हम ये कहते हैं कि जो हमारे जज्बात होते हैं हम लैंग्वेज के जरिए इजहार करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि सिर्फ इजहार नहीं करते बल्कि लैंग्वेज के जरिए हमारे जज्बात बनते भी. गालियां दो चार जुबान पे होती है तो उससे हमारे जज्बात शेप अप भी होते हैं. ठीक है, तो सिर्फ ये बात नहीं है कि हम अपना एक्सप्रेशन जो है वो करते हैं लैंग्वेज के जरिए, बल्कि जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं उससे हमारे बिहेवियर भी डिटरमिन होते हैं. मिसाल के तौर पे आप कहें कि आज से 30-40 साल पहले जब ये कहा जाता था कि जनाब वो जब आप कहते थे अपने घर में बताते थे जो है ना माय फ्रेंड, तो इसका मतलब हमेशा ये लिया जाता था कि फ्रेंड्स मीन फॉर अ फीमेल इट्स अ फीमेल फ्रेंड है. उसके लिए उर्दू में हम कहते हैं सहेली. जैसे जैसे लैंग्वेज चेंज हुई, ठीक है, लैंग्वेज में नई टर्म्स आई. मसलन दोस्त लड़कियों के लिए भी बोलना शुरू हो गए है ना. फ्रेंड इज अ न्यूट्रल टर्म, तो आप कहते हैं माय फ्रेंड, दैट डज नॉट नेसेसरली मीन मेल और फीमेल. लेकिन इसके साथ साथ ये भी हुआ, इसने हमारे जज्बात कैसे शेप अप किए कि जब हम फ्रेंड कहते हैं तो वो कोई ऐसी ऑड चीज़ नहीं लगती. जब आप कहें कि वो किसी लड़की को वो लड़का तुम्हारा यार है, अब इसके बड़े डिफरेंट मीनिंग, राइट. तो जो लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं वो लफ्ज़ असल में हमें हमारा जो दुनिया के बारे में व्यू है उसको बनाती है, राइट. Then comes values, norms, and values, norms, and sanctions. We discuss them one by one. Values can the standards by which people define what is desirable and what is undesirable in a society, right? What is good and what is bad in a society, what is beautiful and what is ugly. इनको हम वैल्यूज कहते हैं. अब आप कहेंगे कि जो अच्छी चीज़ें अच्छी होती हैं, भाई वो तो ठीक है. आप कहेंगे चोरी करना दुनिया में क्या हर मुल्क में बुरी बात है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, लेकिन चोरी समझी किसे जाती है वो फर्क है. क्या किसी ने अगर रोटी चुराई है तो उसको भी चोरी समझा जाता है. अब ये एक मुल्क से दूसरे मुल्क में वेरी करता है. इसी तरह आपने रास्ते में पड़ी हुई चीज़ है, कोई उठा ली है, अब कई जगह पे इसे चोरी समझा जाता है. और कुछ मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे ये साइन ऑफ गुड लक, वो कहते हैं कि ना मुझे रास्ते में ये चीज़ मिली, ये मेरी एक्चुअली गुड लक थी कि मुझे ऐसी चीज़ें मिल गई. ठीक है, तो रिएक्शन जो हम बात कर रहे हैं ना वैल्यूज़ की, व्हाट इज़ डिज़ायरेबल इन लाइफ. Similarly, norms are expectations or rules for behavior. Expectations or norms for behavior that reflect and enforce behavior. ठीक है, वैल्यूज हमने कहा कि व्हाट इज गुड एंड बैड, स्टैंडर्ड्स जो होते हैं हमारे. ठीक है, अब जब जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं हर कल्चर में, हर ग्रुप में, वी डेवलप एक्सपेक्टेशंस कंसर्निंग द राइट वे टू रिफ्लेक्ट इट्स वैल्यूज. इसको हम कहते हैं नॉर्म्स, राइट. नॉर्म्स क्या है? एक्सपेक्टेशंस. नॉर्म्स क्या है? रूल्स ऑफ बिहेवियर्स, राइट. जैसे नॉर्म्स हैं, क्लास नॉर्म्स होती हैं कि भाई आप क्लास में कुर्सी के ऊपर टांगे करके नहीं बैठ सकते, ठीक है, या आपने क्लास में सोना नहीं, ये नॉर्म्स, ठीक है, रूल्स ऑफ बिहेवियर. एंड देन थर्ड वन इज द सैंक्शन. Sanctions means reaction people receive for following or breaking norms. आप नॉर्म्स ये हैं कि आप ड्रेस पैंट पहन के आए अपनी यूनिवर्सिटी में, आप वहाँ पे बड़ी शॉर्ट सी निकर पहनाते,
अब ये इस पे लोग रिएक्ट करेंगे, तो जो लोग रिएक्ट करते हैं किसी नॉर्म को फॉलो करने में या उसको तोड़ने पर, उसको हम कहते हैं सैंक्शंस, राइट। सो देयर कुड बी पॉजिटिव सैंक्शंस एंड देयर कुड बी नेगेटिव सैंक्शंस, ठीक है। पॉजिटिव सैंक्शंस क्या है? पॉजिटिव सैंक्शन एक्सप्रेसेस अप्रूवल फॉर फॉलोइंग अ नॉर्म। जैसे आप कोई बंदा है, वो जनाब आता है आके महफिल में बड़ों को, बड़ा नेक बच्चा है, आते इसने इस्लाम किया, इसको कहते हैं पॉजिटिव सैंक्शन। नेगेटिव सैंक्शन क्या है? लोगों का ऐसा रिएक्शन जो which shows disapproval, right? People do not you do not accept it, right? पॉजिटिव सैंक्शन जो है ये मटेरियल भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल प्राइज किसी को मिला है, पॉजिटिव सैंक्शन है, ठीक है। ट्रॉफी मिली है, पॉजिटिव सैंक्शन है। किसी को पैसे दे दिए नाम में, पॉजिटिव सैंक्शन है, राइट। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे नॉन मटेरियल पॉजिटिव सैंक्शंस भी होती है। फॉर एग्जांपल स्माइल, आप खुश हुए, किसी ने कोई काम किया, ठीक है। गिविंग अ हग, ठीक है, आप गले लगा लिया कि ना बहुत अच्छा काम किया, जीत के आए हो, ठीक है। अब ये इस तरह के, या किसी को कंधे पे हाथ, यानी पैट ऑन द बैक, राइट, किसी के साथ हाथ मिलाना इसलिए कि जनाब आपने ये काम कर दिए हैं, इसको हम कहते हैं, ये सारी हैं पॉजिटिव सैंक्शंस, राइट। नेगेटिव सैंक्शंस क्या हैं? नेगेटिव सैंक्शंस क्या हो सकती हैं? जैसे जैसे हमने कहा कि प्राइज देना पॉजिटिव सैंक्शन है, किसी पे पेनल्टी लगाना नेगेटिव सैंक्शन है। फॉर एग्जांपल कोई ट्रैफिक का इशारा तोड़ता है और आगे पुलिस वाला खड़ा हुआ चालान कर देता है, दैट इज नेगेटिव सैंक्शन, क्योंकि उसने नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया, इसलिए मुआशरा उस पर रिएक्ट कर रहा है, और उसको जैसे रिएक्ट कर रहा है उसको हम कहते हैं नेगेटिव सैंक्शंस, राइट। इसी तरह नेगेटिव सैंक्शंस नॉन मटेरियल भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल किसी ने गुस्से से आपकी तरफ देखा है, किसी ने आपको बड़ा डिसअप्रूवल का साइन दिया है, अब ये सारी हैं नेगेटिव सैंक्शंस। हार्श वर्ड्स किसी ने आपके साथ बोलने हैं, आपको कोई गाली दी है, कि कोई गलत काम कर रहा है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं ये नेगेटिव सैंक्शंस, राइट। Here's a photo. Ethnic terms we choose or which are given to us are major self-identities, in that they indicate both membership in a particular group and separation from others. ये देखें फॉर एग्जांपल, ये यहाँ पे सिख गुरुद्वारे का हो रहा है फिलाडेल्फिया में, एक कोई वॉक है, ठीक है, तो और वो कह रहे हैं कि हम सिख कम्युनिटी के साथ प्राउड टू बी अ सिख, राइट, अपने आप को एसोसिएट कर रहे हैं ग्रुप के साथ, और बाकी ग्रुप्स के साथ एक्सक्लूड कर रहे हैं कि भाई हम अमेरिकन या गोरे नहीं है, हम जो है ना वी आर प्राउड टू बी अ सिख, राइट। अब कुछ और टर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल फोकवेज। फोकवेज के नॉर्म्स, बेसिकली दीज आर नॉर्म्स नॉट स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड। Folkways are the norms that are not strictly enforced, right? हम ये तो ज़रूर एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग फोकवेज को, फॉर एग्जांपल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जनाब गुजरते हुए कोई बंदा सामने आ गया, कोई मोहल्ले का, कोई जिसे आप बहुत ज़्यादा नहीं जानते, तो आपसे सलाम ले लो, ठीक है ना। लेकिन कई दफ़ा लोग नहीं भी सलाम लेते, तो इस पर बहुत ज़्यादा ये नहीं हम करते कि उसे रोक के उससे लड़ना शुरू कर दें, भाई तूने क्यों नहीं मेरे साथ सलाम दिया, ठीक है। फोकवेज, राइट। इसी तरह उसके उलट अगर आप देखें, कुछ नॉर्म्स ऐसी होती हैं विच आर टेकन वेरी सीरियसली, बहुत सीरियस। हम वी एक्सपेक्ट दैट पीपल रियली शो कंफॉर्मिटी, पीपल रियली follow those norms, right? These are called mores. ये MORES मोर्स नहीं है, इसे हम कहते हैं मोरेस, राइट। फॉर एग्जांपल कोई बंदा चोरी करता है, ठीक है, कोई रेप करता है, किसी को मारता है, अब आप देखें कि सोसाइटी उस पर बड़ा शदीद रिएक्शन देती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं मोरेस, कोर वैल्यूज। वी इंसिस्ट ऑन कंफॉर्मिटी, वी रियली वांट पीपल टू फॉलो दीज नॉर्म्स। अगर कोई ब्रेक करता है तो वो सोसाइटी पे रिएक्ट करती है, ये मोरेस है, ठीक है।
मसलन अगर आप यानी सोचे एक बंदा नंगा खड़ा हो जाए कहीं जो है ना चौक में जाके, तो जाहिर है सोसाइटी बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट करेगी इस पर, है? तो मोरल, इससे हम कहते हैं मोरल्स। तीसरा है टैबूज। ठीक है, टैबूज क्या है? टैबू इज अगेन अ काइंड ऑफ नॉर्म, राइट? अब टैबू का मतलब है अगर इतना सख्त जुर्म है कि अगर आपकी कोई इसकी वायलेशन भी हो तो बड़ा सख्त रिएक्शन किया जाएगा। जैसे अगर आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे वो कहते हैं ना कि वो पाकिस्तान में कोई सुअर का गोश्त किसी दुकान ने रख लिया और लोगों को पता चल गया, लोग बड़ा सख्त रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरह टैबूज वो नॉर्म्स हैं जिनको लोग बहुत स्ट्रांगली रेजिस्ट करते हैं और बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, then comes cultures within cultures. Cultures within cultures. उसको हम कहते हैं सब कल्चर्स। सब कल्चर्स क्या है? सब कल्चर द वर्ल्ड विद इन अ डोमिनेंट कल्चर। जैसे आप देखिए पंजाबी कल्चर के अंदर हर शहर का एक कल्चर है, या सराइकी जो इलाका है वो बहुत बड़ा उनका अपना कल्चर है। ठीक है, इसलिए within one culture there can be other cultures, we call them subcultures, right? Now look at this photo. Each subculture provides its members with values and distinctive ways of viewing the world. For example, आपने पता है बॉडी बिल्डर्स का एक अपना कल्चर होता है। ठीक है, वो आपस में डिस्कस करते हैं, आपस में गपशप करते हैं और उन्हें एक खास डायरेक्शन में अपना कल्चर प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, इसी तरह आप देखें कि स्टूडेंट्स का एक अपना कल्चर है जो कि जॉब करने वालों से फ़र्क होता है। सो विद इन अ कल्चर देयर मे बी मोर सब कल्चर्स, राइट? इसी तरह कई ऐसे कल्चर ग्रुप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल गैंगस्टर्स का अपना कल्चर है। ठीक है, इसी तरह ये यहाँ पे देखें, स्पेशलाइज्ड वैल्यूज एंड इंटरेस्ट आर टू ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द marked that mark subculture. What values and interest distinguishes the modeling culture, right? अब ये भी कल्चरल चीज़ है। देखिए सारे जिस्म पे टैटूज बनाए हुए हैं। अब हमारे यहाँ इन टैटूज को बहुत अच्छा नहीं समझा जाता। लोग समझते हैं कि बदमाश टाइप आदमी है या यानी ये आई मीन टू मॉडर्न है जिसने ये बना लिया टैटूज अपने बॉडी पे। लेकिन कई जगहों पे दिस इज परफेक्टली इन फैशन, राइट? ट्रक ड्राइवर फॉर एग्जांपल हैव देयर ओन सब कल्चर, राइट? किस तरह खाते हैं। ट्रक होटल्स आपने देखा अलग-अलग से होते हैं। उन होटल्स पे चारपाई बिछी होती हैं बजाय कुर्सियों, क्योंकि ट्रक ड्राइवर थक के आते हैं, रास्ते में आकर उन्होंने रेस्ट करना होता है, थोड़ी देर लेटना है। ठीक है, तो इनका अपना एक कल्चर। सो विद इन वन कल्चर देयर कुड बी सब कल्चर्स, राइट? सिमिलरली अब ये देखें बुल फाइटिंग का एक वो दिया गया है। अब ये भी एक सब कल्चर के सारे लोग ये नहीं करते, बल्कि सब कल्चर कैन हैव फर्दर सब कल्चर्स। Subcultures can have more subcultures, right? On the other hand, there are things called countercultures. Counterculture, groups with norms or values at odds with dominant culture. आपको पता है हर मुल्क में हर इलाके में एक डोमिनेंट कल्चर होता है। ठीक है, और अगर आप उस डोमिनेंट कल्चर को इग्नोर करें तो आपको पता है प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, इसलिए काउंटर कल्चर्स वो हैं जो कि कल्चरल नॉर्म्स के खिलाफ चल रहे हैं, राइट? ये देखें, अब एक वो अमेरिका में ऑर्गेनाइजेशन है, वाई आर मेंबर्स ऑफ हेल एंजल्स। उन्होंने अपना नाम ही रख लिया दोस्त की फरिश्ता।
ठीक है, part of the country culture and not subculture. Then comes the learning objective 2.4. We'll discuss this in the next recording, right? Meanwhile, if you have any question, you can discuss, you can note down those questions, and you can send me back these questions. We can discuss it, right? So thank you very much. See you in the next lecture.